Good morning, students. In the previous class, we have studied importance of forest, wildlife, what is extinction, extinct, endangered, and threatened species. In today's class, we are going to study about protected natural resources and conservation. Protected natural resources, biosphere reserves. This is an area set aside as a protected area for the preservation of flora, fauna, and wildlife. These areas are generally smaller than national parks. Rare and endangered species are often kept here, far from eyes of hunters. The main purpose of these reserves is to preserve nature. These reserves also provide opportunities to study and research the sheltered animals. बायोस्फीयर रिजर्व्स एक एरिया होता है जिसको सेट किया जाता है एक प्रोटेक्टेड एरिया फ्लोरा फौना और वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए। ये एरियाज़ जो है वो नेशनल पार्क से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। रेयर और एंडेंजर स्पीशीज़ को यहाँ पे जो शिकारी होते हैं उनकी नज़रों से दूर रखा जाता है। जो मेन पर्पज़ होता है इन रिजर्व्स का वो ये होता है कि वो नेचर को प्रिजर्व करके रख सकें। ये रिजर्व्स हमें प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ जिससे कि हम स्टडी और रिसर्च कर सकें शेल्टर्ड एनिमल्स को। नेशनल पार्क्स National parks are areas set aside by the national governments to preserve the natural environment. They also serve the purpose of recreation and public enjoyment centers for historic or scientific interest. The entire landscape in these parks, along with the plants and animals, are kept in their natural state. Canada, US, Great Britain, Africa, Japan, India, Brazil, and Australia have many large national parks. नेशनल पार्क वो एरियाज़ हैं जिसे नेशनल गवर्नमेंट जो है सेट करती है इन नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। नेशनल पार्क जो है वो उनका जो पर्पस होता है वो रिक्रिएशन होता है और साथ ही साथ पब्लिक इंजॉयमेंट सेंटर भी होता है हिस्टोरिक और साइंटिफिक इंटरेस्ट के लिए। जो इंटायर लैंडस्केप होता है इन पार्क्स का प्लांट्स और एनिमल्स के साथ उन्हें एनिमल्स को उनकी नेचुरल स्टेट में रखा जाता है। कनाडा, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन, अफ्रीका, जापान, इंडिया, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सब के पास बहुत सारे जो है वो बड़े बड़े नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क्स इन इंडिया हैज़ 59 नेशनल पार्क्स एंड 372 sanctuaries. There are 1200 species of birds and 350 species of mammals in the forests of India. In addition, the Run of Kutch, Gujarat is the world's largest natural breeding place for flamingos. A sanctuary is a space set aside for the exclusive use of and protection for animal. Polar bear, cheetah, and manatee are some threatened species which may face extinction. Olive ridley turtles visit the coast of Odisha to breed every year between October and May. The largest national park in India is the Hemis in Jammu and Kashmir, 3,350 square kilometer, followed by the Desert National Park in Rajasthan, 3,162 square kilometer. There are numerous animals and birds that are endemic to India alone. The Himalayan wolf, Sanim Ali's fruit bat, Rotans, free-tailed bat, Sumatran rhinoceros, Indian vulture, Namdapa flying squirrel, Malabar large spotted civet, and pygmy hawk are some of the critically endangered species of India. इंडिया में हमारे अगर नेशनल पार्क्स की बात करें तो 59 नेशनल पार्क्स और 372 सेंचुरीज़ हैं। यहाँ पे 1200 स्पीशीज़ जो है वो बर्ड्स के और 350 स्पीशीज़ मैमल्स के फॉरेस्ट में जो इंडिया के जंगल है वहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा जो रन ऑफ कच्छ है गुजरात में, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेचुरल ब्रीडिंग प्लेस है फ्लैमिंगोज़ के लिए। सेंचुरी एक स्पेस होती है जो कि सेट की जाती है एक्सक्लूसिव यूज़ और एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए। पोलर बियर, चीता और मनाटे कुछ ऐसे थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्शन को फेस कर सकते हैं। ऑलिव रिडले टर्टल्स हर साल जो है अक्टूबर और मई के बीच में उड़ीसा के कोस्ट पे आते हैं फॉर ब्रीडिंग। ठीक है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क अगर हम इंडिया की बात करें तो वो हेमिस है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि 3,350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और उसके बाद जो दूसरा है वो है डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, जो कि 3,162 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो कि एंडेमिक हैं इंडिया में अलोन। ठीक है। हिमालयन वुल्फ, सलीम अलीज फ्रूट बैट, रॉटन्स फ्री टेल बैट, सुमात्रन राइनोसेरोस, इंडियन वल्चर, नमदाफा फ्लाइंग स्क्विरल, मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट और पिग्मी हॉग, ये जो है सम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं इंडिया के। कंजर्वेशन. Deforestation is taking place all over the world on a large scale.
When huge amount of forests are removed, the water balance gets disrupted and the region experiences dryness. But deforestation is not just about trees. Just think about the ecosystem supported by forests and all the species dependent on them for their survival. Therefore, conservation is important. Conservation studies the ways that the Earth's biological diversity is lost and finds means to protect them and to keep the ecosystem functioning. कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन जो है वो पूरी दुनिया में जो है हो रहा है एक बहुत ही बड़े स्केल पे। जब ज़्यादा मतलब ह्यूज अमाउंट पे हम फॉरेस्ट को रिमूव करते हैं तो उससे क्या होता है कि वाटर बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो रीजन ड्राइनेस को एक्सपीरियंस करता है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन सिर्फ इस चीज़ के अबाउट नहीं कि हम ट्रीज़ को कट करते हैं। बस आप ये सोचो जो इकोसिस्टम सपोर्ट कर रहा है फॉरेस्ट, ठीक है, और जितने भी स्पीशीज़ जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है उनके सर्वाइवल के लिए, उसके भी बारे में आप सोचिए। डिफॉरेस्टेशन से उन पे भी असर पड़ रहा है। सो कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन स्टडी करता उन वेज़ को जो कि अर्थ की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो अर्थ की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से लॉस्ट हो चुके हैं और वो नए नए मीन्स को खोजता है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें जिससे कि इकोसिस्टम की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से चल सके। हाउ कैन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बी कंजर्व? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ आप कैसे कंजर्व करके रख सकते हो? बाय डीमार्केटिंग फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज एंड प्रिवेंटिंग इलीगल लॉगिंग। ठीक है, आपको डीमार्केटिंग करनी है फॉरेस्ट की एज अ प्रोटेक्टेड एरिया और प्रिवेंट करना है जो भी इलीगल लॉगिंग होगी। ठीक है, यूजिंग रिसाइकिल पेपर टू रिड्यूस प्रेशर ऑन ट्रीज, हमें रिसाइकिल पेपर का यूज़ करना चाहिए जिससे कि ट्रीज़ पे कोई प्रेशर ना पड़े। बाय प्रिवेंटिंग पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ की जो पोचिंग है मतलब किलिंग है उसको हमें रोकना है। बाय प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज़ इन रिजर्व्स टू अलाउ ब्रीडिंग, मतलब हमें प्रोटेक्ट करना है एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़ को रिजर्व्स में जिससे कि ब्रीडिंग हो सके उनकी। बाय प्रिवेंटिंग हंटिंग एंड स्मगलिंग ऑफ रेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स, हंटिंग और स्मगलिंग जो रेयर बर्ड्स और एनिमल की है उससे हमें प्रिवेंट करना, उससे हमें बचाना है उन्हें। Increasing awareness and knowledge to preserve and conserve vegetation and wildlife through the media such as newspapers, television and school books. इंक्रीज करना अवेयरनेस और नॉलेज को जिससे कि प्रिजर्व और कंजर्व कर सके वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और स्कूल बुक्स की हेल्प से। There are numerous international bodies that are involved in the protection of natural vegetation and wildlife. There are certain areas that qualify as biosphere reserves, which means they have a large diversity of vegetation and wildlife. In these reserves, different types of ecosystems coexist and are protected while letting local people to continue using these reserves in a sustainable manner. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora cites ensures that there is no illegal trading in threatened species of wild animals and plants and protects thousands of species of animals and plants. ऐसे बहुत से इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन में। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें हमने क्वालिफाई कर दिया बायोस्फीयर रिजर्व्स में। इसका मतलब है कि वो लार्ज डाइवर्सिटी है वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के। इन रिजर्व्स में जो है बहुत तरीके के इकोसिस्टम कोएग्जिस्ट करते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं और लोकल पीपल उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब लोकल पीपल उनमें जा सकते हैं, इन रिजर्व्स को यूज़ कर सकते हैं सस्टेनेबल मैनर में। जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा CITES, ये इंश्योर करता है कि कोई भी इलीगल ट्रेडिंग ना हो थ्रेटेंड स्पीशीज़ की, वह जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, और प्रोटेक्ट करता है 1000 स्पीशीज़ एनिमल्स और प्लांट्स की। Some special efforts adopted by the Government of India are: first is National Forestry Action Program. It will help increase the forest cover and control deforestation. कुछ स्पेशल एफर्ट्स हैं जो कि अडॉप्ट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। सबसे पहला तो है नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम। ये हेल्प करता है इंक्रीज़ करने में फॉरेस्ट कवर और कंट्रोल करता है डिफॉरेस्टेशन को। सेकेंड इज़ नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ये जो है इम्प्लीमेंटेड किया जाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए और साथ ही साथ प्रोटेक्शन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। इंडिया जो है फॉलो करता है CITES और अदर नेशनल लॉज और एग्रीमेंट्स को कंजर्वेशन पे। वन महोत्सव एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है बहुत सारे पार्ट्स में कंट्री के, जिससे कि वो एनकरेज करता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़। वाइल्ड लाइफ वीक भी एक एफर्ट है गवर्नमेंट के थ्रू जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को हर साल जो है ऑब्जर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक कंट्री में, जिससे कि अवेयरनेस इंक्रीज़ करी जा सके अबाउट वाइल्ड लाइफ।
it for today's class. Thank you.